In today's class, we are going to understand and quickly make some questions from the chapter Metals and Non-Metals. I've already shared these questions on your WhatsApp group. I'm going to quickly explain the questions that we can frame from this chapter. So, as the name of the chapter states that it is metals and non-metals, my first question would be, what is the difference between metals and non-metals? So, I'll tell you the answer simultaneously. Now, metals, what you have to do is you have to learn the features of metals and then you can write down the counter feature for non-metals. So let's say my first feature is that metals are shiny, or we can also say that they are lustrous. So they mean the same thing. What are non-metals? They are not shiny, they are not lustrous. Okay, so they are dull in color. This can be my first point. My second point is that metals are malleable. Malleable means that you can convert metals into sheets like aluminium foil, but you cannot convert non-metals into sheets. I'll give you two examples of a metal and a non-metal. You'll be able to understand it very quickly. So then example of a metal is, let's say, aluminium, okay? And the example of non-metal can be carbon or coal, okay? Or it can be sulfur, anything like that. So metals are malleable, that means I can convert aluminium into sheets, okay? But if I try to beat coal, will I be able to convert it into sheets? No, I cannot. So they are not malleable. Number 3, metals are ductile. Ductile means that they can be converted into wires. So if I want, I can make aluminium wires, I can make gold wires, I can make silver wires, copper wires, etc. But I cannot make a non-metal, I cannot convert a non-metal into a wire. So if I'll beat a non-metal, I will get, it will get broken up very easily and I will not be able to get a wire from it. Next is, metals are sonorous. So sonorous means that metals make a sound. So if I hit the school bell, I will be able to hear a sound because metals are sonorous. So that ting sound is basically the property of sonorosity. However, if I hit a non-metal or a coal, I will not get that ting sound, so they are not sonorous, okay? Similarly, you can say that metals are good conductors of heat and electricity. So if I try to pass heat and electricity through a metal, जैसे एल्यूमिनियम का बर्तन ले लो, गर्म करने के लिए गैस पर रखेंगे तो जल्दी से गर्म हो जाएगा. कोयले का बर्तन आपका गर्म नहीं हो सकता, ऑब्वियसली उससे आग लगेगी या कुछ भी होगा, बट it cannot be used for cooking or passing electricity. So these are good conductors of heat and electricity. However, this one is not, okay? So these are also, you can write down their melting point and boiling point. मतलब जो मेल्ट करते हैं और बॉयल करते हैं जिस टेम्परेचर पे, वो काफ़ी हाई रहेगा, बट फॉर नॉन मेटल इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लो, comparatively lower than them. ठीक है? So these are some of the differences that you can write in this question. So I've also given you the answer. Otherwise, if you know any better answer, you can write that also. So the next property is, what do you understand by the term luster? So by luster we basically means that metals have a shiny surface. Shine को luster कहते हैं. So metals have that shiny appearance which is known as luster. Then the next question can be, what is malleability? I just told you, malleability is when you beat the metals and make sheets from them. That property is known as malleability. When you're making wires from them, that property is known as ductility. So if I want, I can convert 1 gram of gold into 2 kilometer, a wire of length 2 kilometer. So you can imagine how ductile these metals are. Okay, ductile means that it can be converted into a wire. So which metal is the most ductile metal? It is gold. Then the next question. So as I told you that metals are good conductors of heat and electricity and they have high melting and boiling points. So which metal is the best conductor of heat? It is silver and copper. ठीक है? Silver and copper are one of the best conductors of heat. And which metals are poor conductors of heat? They are
lead and mercury. So my questions, the questions are there, and I've also written the answers. Then what do you understand by the term sonorous? It means when you hit the metal, they produce a sound on striking them. So basically this property is known as sonorous, being sonorous. Okay. Then the next question is, name a non-metal which is, so these are all exceptions. Now this can be asked in the exam this is actually asked in the exam very frequently, can be a part of multiple choice questions or maybe a 2-marker. So here the first question is, first of all we need to know all the, like most of the metals are solid in state. Okay, so which, and most of the non metals they are either solids या फिर वो क्या होंगे, gases. So एक non metal है जो liquid है, ठीक है. Which non metal is this? This is bromine. So bromine is liquid. Then we'll again understand the exceptions. So as I said, which non-metal is a liquid? The non-metal which is a liquid is bromine. A metal which is liquid is mercury, which is used in our thermometers. Okay. Next question is, if you generally metals are they have very high melting points, but we do have metals जो कि हाथ पे रखते ही they will melt. So those are gallium and cesium. They have very low melting points. So if you keep them on your palm, they will melt. Then I told you that non-metals are not shiny, but the non-metal which is shiny is iodine, which is used in a salt. So it is put in our salt which we have at home. So iodine is lustrous. Again an exception. Exception means that it is जनरली एक पर्टिकुलर ग्रुप की एक सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट उसमें ऐसा हो सकता है देयर कैन बी सर्टन एलिमेंट्स विच आर नॉट हैविंग द सेम प्रॉपर्टी. That is known as an exception, and in science we have many exceptions. Okay, so here iodine is one of the exceptions. Then carbon is a non-metal, और कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स होते हैं. एलोट्रोप्स क्या है? एलोट्रोप्स इज बेसिकली दे हैव द सेम chemical properties, but they're physically they are very different, and the properties are very different. So if I look at the allotropes of carbon, they are diamond and graphite. Okay, and we have more allotropes also, but I'm specifically going to talk about these two right now. Diamond is made up of carbon only, and graphite is also made up of carbon, but diamond is one of the hardest substance, whereas graphite is not. Similarly, diamond has a very high melting points, very shiny and very high boiling point, but graphite is not. So diamond cannot conduct electricity, but graphite can conduct electricity. So you can see एक ही एलिमेंट से बने हैं, बट फिर भी प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट है. अगर हम मेटल्स को जनरली इमेजिन करें लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, वी कैनॉट ईजिली ब्रेक देम और वी कैनॉट ईजिली कट देम. But there are some metals which can be cut by using a knife. So the metals which can be cut by using a knife are lithium, sodium and potassium. Please learn all these exceptions. And why can we cut them? Because they have very low density and very low melting points. Okay. Now these were some of the exceptions. We are going to jump on to the next set of question. The next set of questions says that, question number 16 says, so basically whenever we are reacting metals in the presence of oxygen, we get metal oxides. Okay, और ये जो metal oxides हमें मिलते हैं, ये generally bases होते हैं, basic in nature. ठीक है, कैसे याद रखेंगे? हमारे पास एक बेस याद कर लो. The base is, let's say, NaOH. NaOH is one of the strongest bases. So Na is a metal. So this has basic nature. You can learn it like that. And non-metals क्या बनाएंगे फिर? Acidic oxides. Okay. Let us quickly discuss these answers. So my first question is, give an example of a metal which is liquid at room temperature. Metal. So mercury. Can we easily cut with a knife? Gallium, sodium, potassium and lithium. Next question, best conductor of heat? Copper and silver. Then poor conductor of heat, lead and mercury. Malleable can be converted into metals, can be converted into sheets. Ductile can be converted into wires. So these were all physical properties. Now we are going to discuss the chemical properties of metals.
So here I will recommend you to write down the equations along with the, now this is a general equation. You must know the like how do different metals react with oxygen and water, etc. So the first set of questions that I'm going to get is from how do metals react with oxygen. So whenever you react a metal with oxygen, you are going to get a metal oxide. Example here, copper reacting with oxygen gives you copper oxide. Copper generally is brown in color. Metal is brown in color, turns into blackish in color when it reacts with oxygen. Learn the equation, know how to balance it. Aluminium, when reacts with oxygen, gives aluminium oxide. And then let's say if iron reacts with oxygen, it will give you ferrous oxide or ferric oxide. If sodium reacts with oxygen, it will give you sodium oxide, and so on. So generally metals reacting with oxygen give you a metal oxide. And what kind of an oxide is it? It's a basic oxide. Now metal oxide, as I told you, that generally they are what? They are basic in nature. Now but there are certain metal oxides जो कि किससे क्या करेंगे, दोनों एसिडिक बिहेवियर भी दिखाते हैं और बेसिक बिहेवियर भी दिखाते हैं. अगर मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड्स को वी कॉल एम्फोट्रिक ऑक्साइड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो that can be define amphoteric oxide. So if a metal oxide or a metal is reacting with both acid and base to produce salt and water, then it is known as an amphoteric oxide. And these are the examples. There are, for in your syllabus there are 2 elements like these. So you have to learn aluminium oxide and then you have to learn zinc oxide. Okay, so learn these. Aluminium and zinc are 2 metals which make amphoteric oxide. Learn the reactions also. They are going to produce a salt and water. Now generally the basic oxides which are produced by metals, they are insoluble in water, most of them. But if they dissolve in water, अगर वो पानी में डिजॉल्व होंगे तो हम उनको कहते हैं alkalis. तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, ये सारे के सारे पानी में जल्दी से डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए दे मेक स्ट्रॉन्ग बेसिस. सो मेटल ऑक्साइड्स, if they you know they're basic in nature, if they react with water they produce alkalis. So what are alkalis? Bases that dissolve in water are known as alkalis. Learn the examples. Now next question, which metals are kept immersed in kerosene? So the metals which are kept immersed in kerosene are potassium and sodium, because if you keep them in any other substance, or if you keep them in open, then that they will catch fire. And to protect them and to prevent accidental fires, they are kept in kerosene oil. They are very very reactive, generally react with oxygen also, therefore they are kept in kerosene oil. Now generally what happens is, if if a metal is kept in the atmosphere, so it acquires a very thin layer of oxide. And when this oxygen layer is produced on a metal, तो उससे क्या होगा कि वो मेटल फर्दर उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर सकेगा. एक ऊपर से एक लेयर बन जाएगी, इट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव लेयर, वो प्रिवेंट करेगी कि मेटल जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो. तो हमें क्या करना है, वेन एवर वी आर बर्निंग अ मेटल, वी हैव टू रब इट विद अ सैंड पेपर, वी हैव टू क्लीन इट सो दैट वी कैन गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. सो मेटल्स आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड. हाउ डज इट अफेक्ट देयर एक्टिविटी? Obviously it will not let it burn properly when it has an oxygen layer, so we have to clean it. तो मैग्नीशियम को हम क्यों सैंड पेपर से क्लीन कर रहे हैं? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर ऑलरेडी एक लेयर आई थी और उस ऑक्सीजन की, उसको हम क्लीन करेंगे सो दैट वी कैन गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, नाउ if we talk about gold and silver, they don't react with oxygen. That is why we generally make jewelry of gold and silver, because they're very very less reactive, so least reactive elements. Okay, next question is, what is anodizing? तो अगर किसी मेटल को हमें प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम ऑक्सीडेशन या फिर रस्टिंग या करोजन, सो हम क्या करेंगे, वी विल ऑन दैट मेटल वी आर गोइंग टू पुट अ थिक
ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एक थिक ऑक्साइड लेयर लगा देंगे ताकि क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली वो ऑक्सीजन के साथ वो खुद ही रिएक्ट कर रहा है एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द मेटल विच इज़ इनसाइड इट। सो कैसे करेंगे? ड्यूरिंग एनोडाइजिंग क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड। क्लीन वाला जो है वो एनोड बना देंगे। जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का है। द ऑक्सीजन विच इज़ इवॉल्व्ड एट द एनोड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम और क्या बनाएगा? इट विल मेक एन ऑक्साइड लेयर विच इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये ईजिली इसको डाई करा जा सकता है और डाई करने के बाद में ये आर्टिकल्स, दीज एल्यूमिनियम आर्टिकल्स आर यूज्ड इन द मार्केट सो दे डू नॉट यूजुअली get corroded. This process is known as anodizing. Next question is, so how is it performed? This is the same question, and the next question would be, what happens when metals react with water? So whenever metals react with water, you have to remember that they are going to produce a metal oxide and they're going to produce hydrogen. I'll give you an example. Let's say Na plus water H2O. I'll just quickly erase it. Give me a second. 1 second. Na plus H2O. तो क्या बनाएगा वो? Na2O and hydrogen gas. ठीक है? Now this will quickly react with water and this is going to produce sodium hydroxide. अब मान लेते हैं इसी की जगह हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Al2O3 एंड हाइड्रोजन गैस। सो जो भी मेटल है उसका ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। लर्न द रिएक्शंस प्लीज। नाउ द क्वेश्चन इज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टिविटीज़ हियर। वन इज़ कि सिर्फ ठंडे पानी से सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, तो किस किस पानी से मेटल्स रिएक्ट करेंगे? द मेटल्स रिएक्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर। One is the metals that react with cold water. It's potassium, sodium, lithium. वो cold metal के साथ भी react करेंगे और violent reaction रहेगा, exothermic reaction रहेगा. So it will, जैसे ही वो hydrogen produce होगी ना यहाँ पर, वो hydrogen क्या करेगी? It will immediately catch fire. So here this is the reaction. Learn it. Then calcium also reacts with cold water and but यहाँ पर it is not going to catch fire because उसमें इतना हीट लिबरेट नहीं होता। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है विच इज़ विच मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर एंड वाई? द मेटल्स विच विल स्टार्ट फ्लोटिंग आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि जब वो रिएक्ट कर रहा है तो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट हाइड्रोजन इट इज प्रोड्यूसिंग बबल्स, तो दोज बबल्स विल स्टिक, वो उसके सरफेस पे चिपक जाएंगे और वो मेटल फ्लोट करने लग जाएगा। ठीक है, सो दे स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। हाउएवर कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। ठीक है, अब कोल्ड वाटर की बात हो गई, हॉट वाटर की बात हो गई। कुछ मेटल्स रहते हैं ऐसे हैं जो ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना ही हॉट के साथ में, दे आर ओनली रिएक्टिंग विद स्टीम। सो विच आर दीज मेटल्स? दीज मेटल्स आर एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक and they react with steam. So the reaction is almost the same. It's aluminium water plus water gives you aluminium oxide and hydrogen. Iron plus water gives you iron oxide and hydrogen gas. अब कौन से मेटल्स हैं जो पानी के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे? दे आर लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड बिकॉज दे आर लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज. ओके, सो विच मेटल्स रिएक्ट विथ स्टीम? इट इज iron, aluminium. So you learn them, okay, etc. Metals that do not react with water at all, it's copper, silver, gold, lead, platinum, etc. Next, what happens when metals react with acid? So metal, let's say यहाँ Na लिया हमने metal, acid ले लिया HCl, so I get NaCl, NaCl और plus क्या आ जाएगा? Hydrogen gas. So metal when reacts with the dilute acid gives you a salt and hydrogen gas. Why hydrogen gas is not liberated on reaction with HNO3? Because ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आता भी है। हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं प्रोड्यूस होती? देखो, आप ज़्यादातर रिएक्शन या तो H2SO4 के साथ करेंगे या फिर आप HCl के साथ करेंगे। HNO3 हाइड्रोजन गैस इतनी जल्दी लिबरेट नहीं करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि वो क्या, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है वो ऑक्सीजन ऐड करता है. सो हियर जैसे ही वो हाइड्रोजन यहाँ गैस प्रोड्यूस होती है ना, वो अगर HNO3 का केस है तो ये हाइड्रोजन गैस को वो ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, H2O. H2O क्या है, पानी. और खुद ये जो NO3 है ये रिड्यूस हो जाएगा और बन जाएगा कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड, जैसे NO2, N2O, NO2, NO etc. लेकिन देर आर टू मेटल्स विच रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है तब भी वो रिएक्ट करके उससे क्या बना रहे हैं, दे आर मेकिंग हाइड्रोजन गैस. सो विच आर दीज मेटल्स, दीज आर मैग्नीशियम एंड मैंगनीज. दे रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. सो प्लीज़ लर्न दिस क्वेश्चन, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये ऐसा क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही अंदर बुक में लिखा हुआ है. सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे जनरली डोंट रीड इट. ओके, सो आई विल क्विकली टेल यू व्हाट इज़ एक्वा रीजिया. मैंने बोला that metals, they don't react with like gold, silver, they are not reacting with oxygen, they are not reacting with water, they don't even react with acids because they are very low in the reactivity series. So what happens in the case of aqua regia? In the case of aqua regia को Latin में उसका मतलब है royal water. Now how is it prepared? आप लेंगे 3 parts of concentrated HCl और लेंगे 1 part of कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. मतलब कि आपने क्या किया, अगर 3 ml ये लिया है तो 1 ml ये वाला लेंगे. इनको जब मिक्स करेंगे, बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन होना चाहिए व्हेन यू आर मिक्सिंग देम. सो इट प्रिपेयर्स अ वेरी करोजिव, मतलब करोजिंग फ्यूमिंग लिक्विड. और अगर आप उसमें गोल्ड या सिल्वर प्लैटिनम डिप करेंगे तो इट विल डिजॉल्व देम. So this is used by frauds. I'll tell you where is the question related to this. There's a question at the end of the chapter which is a man went door to door posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out which solution has he used? So the solution which has been used by him is aqua regia. Aqua regia is what? It is concentrated HCl and mixed with concentrated nitric acid, freshly prepared in the ratio 3:1, and this can dissolve the liquids like gold and silver. जबकि ग्लो गोल्ड एंड प्लैटिनम, जबकि अकेले एसिड में डालेंगे तो वो नहीं करेगा. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अगर एक मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होगा. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है, इफ़ देर इज़ अ मेटल विच इज़ हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वो लो वाले को, जो लेस स्ट्रॉन्ग है या वीक मेटल है, उसको उसकी जगह से हटा देगा. ठीक है. तो कैसे, जैसे मान लो ए स्ट्रॉन्ग मेटल है और सी उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सी क्या करेगा, जाके ए की जगह ले लेगा और ए को रिएक्शन से बाहर फेंक देगा. आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस हियर. ये ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट. इसमें क्या डिप किया हुआ है, एक आयन का नेल, मतलब Fe. तो Fe क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, Fe ले लेगा कॉपर की जगह, FeSO4 बना देगा और कॉपर को रिएक्शन से बाहर फेंक देगा. इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो क्या चेंजेस ऑब्जर्व करें, ये जो ब्लू कलर था ये तो चेंज हो गया. ये देखिए, ये जो नेल है इसका कलर किस तरीके से चेंज हो गया, इट हैज़ बिकम स्लाइटली ब्राउनिश हियर. सो यू विल राइट डाउन द रिएक्शन. यू मस्ट नो कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. सो अ स्ट्रॉन्ग मेटल विल डिस्प्लेस अ वीक मेटल. So you must know what is a displacement reaction. Then what is a reactivity series? A reactivity series is a list of metals जहाँ पर strong से लेकर weak तक वो अरेंज्ड है. So सबसे ज़्यादा strong कौन है, पोटाशियम. सबसे weak कौन है यहाँ पर, गोल्ड. प्लैटिनम is even weaker than this. आप इतना लर्न कर लीजिए, इनफ है. इसके नीचे जितने भी हैं they are very weak metals. And these are all very reactive metals. Okay, these are less reactive, least reactive metals, and these are very reactive metals. Now learn the reactivity series better.
So the first question is, why sodium kept in kerosene oil? Because it reacts with oxygen, catches fire immediately. Then write equations for the reaction. So you write down the reactions, it's given in there. Then you have to do this question. Please do this question. Try to do this. If you don't get the answer, please ask me. Which gas is produced when HCl is added to a reactive metal? Whenever a metal reacts with acid, hydrogen gas is produced. Then you have to write down सेम रिएक्शन, बट इस बार डाइल्यूट H2SO4 लेंगे. पिछली बार क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म हुआ, इस बार सल्फेट सॉल्ट फॉर्म होगा. व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ जिंक इज एडेड टू आयरन? चेक करो कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है या आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, एंड देन ट्राई टू राइट डाउन द रिएक्शन. द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. जब मेटल और नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक का मतलब है कि हर एलिमेंट के पास में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. जैसे मान लो सोडियम के पास का एटॉमिक नंबर है 11. अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगा 2, 8 एंड 1. उसके लास्ट शेल को भरने के लिए हमें 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकती हूँ. तो ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, इफ़ इट इज़ गिविंग टू समवन, इफ इट इज़ लूजिंग, इट इज़ गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव चार्ज. इफ़ यू आर गिविंग समवन समथिंग, यू गेट अ पॉजिटिव चार्ज. दैट्स अ पॉजिटिव आयन, ठीक है. वो पॉजिटिव आयन हो गया. और इसी तरीके से मान लेते हैं क्लोरीन के बारे में बात करते हैं. सो क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17, कैन बी रिटन लाइक दिस 287. लास्ट शेल को फुल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस बार इसको गेन करना पड़ेगा, ठीक है. या तो ये 7 लूज़ कर सकता है या एक किसी से ले सकता है. सो इफ़ इट इज़ टेकिंग वन फ्रॉम एनी अदर एलिमेंट, देन इट विल गेट अ नेगेटिव इमेज विच लाइक अ नेगेटिव आयन, ठीक है. इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब अगर हम इन दोनों को देखें तो ये इसको देना है, इसको इट हैज़ टू टेक. तो दिस वन विल गिव इट टू क्लोरीन. Na किसको दे देगा? क्लोरीन को. और क्लोरीन क्या करेगा? इट विल गेन फ्रॉम Na. सो दिस हियर वी कैन सी अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मे बी compounds are formed by losing and gaining electrons. Such type of compounds are known as ionic compounds, या उनको हम बोलते हैं electrovalent compounds. Learn the definitions, okay? Now, so the first question that you will get from this part is, you have to show the formation of NaCl and MgCl2, and there are many others. Let us discuss this one. देखो, as I just told you, Na के लास्ट शेल में मतलब टोटल अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें सो इट्स 2, 8 एंड 1. तो Na अगर अपना शेल कंप्लीट करना चाहता है स्टेबिलिटी के लिए, तो वो क्या कर सकता है? इट कैन लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन के लास्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स. अगर उसको अपना शेल कंप्लीट करना है तो वो क्या करेगा? इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन. अगर हम लूज़ करते हैं तो हमारे पास प्लस का चार्ज आता है, अगर हम गेन करते हैं तो हमारे पास माइनस का चार्ज आता है. तो Na अपना जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो किसको दे देगा? क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन को भी तो अपना शेल कंप्लीट करना है. Na हैज़ गिवन, सो इट गेट्स अ +1 चार्ज. क्लोरीन ने इट हैज़ टेकन, सो इट गेट्स अ -1 चार्ज. दिस वे द structure is formed. This is 1. Okay. Now ये आपस में बहुत strongly bonded होते हैं. They cannot be broken easily. The salt that we eat at home is NaCl, और वो इसी तरीके से फॉर्म होता है. Let's talk about the next one, which is MgCl2. अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12. So it is written like this 2, 8 and 2. इट हैज़ टू लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, तब वो अपना लास्ट शेल कंप्लीट कर पाएगा. जब 2 लूज़ करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? 2+ का. 3 लूज़ करेगा तो 3+ का. क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? और 1 मोर, बिकॉज 7 है, 8 चाहिए होते हैं. तो ये क्या करेगा? किसी से इट विल टेक. सो 2, 8, 8 आफ्टर टेकिंग माइनस. अब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक तो दे देगा इस क्लोरीन को और दूसरा इस क्लोरीन को. देयर विल बी 2 क्लोरीन्स, क्योंकि एक एक दे देगा. सो मैग्नीशियम के ऊपर 2+ का चार्ज आ जाएगा. क्लोरीन कितने हैं? 2, और हर क्लोरीन ने कितने चार्ज लिया है? ओनली 1. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ फॉर्म्ड.
जितने हैं 1 and 2, तो आई राइट 2 हियर, और जितना इलेक्ट्रॉन्स उसने लिया है वो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ नो हाउ टू form these compounds. These compounds are also known as ionic, or they are also known as electrovalent compound. This is the definition. So what are ionic compounds? The definition is in front of you. Question number 41, which is write the properties of ionic compounds. So the properties of ionic compounds are, first, that ionic compounds, उनका physical nature, ज़्यादातर जो ionic compounds है they are solid in state. जैसे NaCl, जो सॉल्ट हम घर में खाते हैं उसी का एग्जाम्पल लेते हैं। NaCl इज़ सॉलिड इन स्टेट, इट इज़ हार्ड, लेकिन अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो ईजिली टूट जाएगा, उसको ब्रिटल कहते हैं व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन इट। बट ये बहुत इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव और माइनस के, प्लस एंड माइनस के अट्रैक्शन से बनता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज़ वेरी हाई, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई, क्योंकि वो मेल्टिंग कैसे पता चलेगा? इफ़ आई हीट सॉल्ट ऑन माई गैस स्टोव, तो वो मेल्ट नहीं होगा इतनी जल्दी, क्योंकि उसके बीच में जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। सोडियम NaCl को अगर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन वहीं हम उसको केरोसिन और पेट्रोल में डिज़ोल्व करेंगे तो नहीं होगा। सो इट डिज़ोल्व्स इन वाटर बट डज नॉट डिज़ोल्व इन केरोसिन एंड पेट्रोल। देन इफ़ यू मिक्स सॉल्ट इन वाटर इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि प्लस और माइनस चार्जेस हैं। सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो मोल्टन स्टेट में है, मतलब कि मेल्टेड है, या फिर अगर वो पानी में डिज़ोल्व है, तो वो ज़रूर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। प्लीज़ रीड दिस, ओके। सो हियर यू आर गिवन 2 questions. You have to draw an electron dot structure of sodium, oxygen and magnesium, then the formation of Na2O and MgO. ठीक है, try to do this. If you don't understand, ask me. Next question, what are minerals? अब जो भी हमें नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस अर्थ के ऊपर एलिमेंट्स मिलते हैं या कंपाउंड मिलते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल देम मिनरल्स। अगर उस मिनरल में बहुत ज़्यादा मेटल हमें मिलता है तो, और हम प्रॉफिटेबली उसको निकाल सकते हैं एक पर्टिकुलर मेटल को, तब हम उसको क्या बोलेंगे? ओर। जैसे एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट। सो बॉक्साइट कैन बी प्रॉफिटेबल, इफ़ यू फाइंड बॉक्साइट वी कैन प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट aluminium from it. Then, so what is an ore? Ore is a mineral that contains a very high percentage of a metal and particular metal, and it can be profitably extracted from it. This is known as a ore. Next is, so how do we extraction of metals? अब metals 3-4 तरीके के हैं। One is, कुछ मेटल्स फ्री स्टेट में मिलते हैं, कुछ मेटल्स कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा कंबाइंड स्टेट में हैं। जैसे कुछ सल्फ़र और कार्बोनेट के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेंगे, कुछ फ्री मिलेंगे, और कुछ किसके साथ कंबाइन करेंगे? बहुत ज़्यादा ही उनका कॉम्बिनेशन होता है विद अदर मेटल्स। सो ये हायर रिएक्टिविटी है, ये मिडिल रिएक्टिविटी है, और ये लोअर रिएक्टिविटी है, द लीस्ट रिएक्टिव वंस। अगर हायर है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर मीडियम है तो या तो मैं करूँगी, या तो वो कार्बोनेट का ओर होगा या फिर वो सल्फाइड। दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और अगर कार्बोनेट का ओर है तो क्या करेंगे? कैल्सिनेशन प्रोसेस, और अगर सल्फाइड का ओर है तो रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन में क्या होता है? आपने उस मेटल का, जो भी कार्बोनेट का ओर है ना, तो उस दैट मेटल कार्बोनेट, जो भी मेटल कार्बोनेट है, उसको आप बिल्कुल नाम मात्र ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सिर्फ इतनी कि आग लगे, उतनी प्रेजेंस में आप उसको क्या करेंगे? हीट। जैसे ही आप उसको हीट करेंगे तो वो बन जाएगा मेटल का ऑक्साइड, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ कर देगा। सेम इस केस में, लेकिन इस केस में सल्फाइड के ओर होंगे, तो मेटल सल्फाइड मान लेते हैं। उसको आप किसकी प्रेजेंस में इस बार बर्न करेंगे? ऑक्सीजन की। वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ कर देगा।
अब आपके पास दोनों ही केसेस में यू हैव रिसीव्ड एन ऑक्साइड ऑफ मेटल। इसको आप कार्बन जैसा कोई भी एक एलिमेंट लेकर उसको रिड्यूस करेंगे और आपके पास फिर मेटल को प्योरीफाई करेंगे। जैसे ये मेटल ऑक्साइड पे फिर हम कार्बन से इसको रिएक्ट करेंगे। कार्बन विल टेक अवे द ऑक्सीजन बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड वी विल get the metal and then we will purify it. Same happens in this case also. We have metal oxide. We are going to repeat the same process. Okay. And in electrolysis the process is a little different. और लो रिएक्टिविटी ज़्यादातर सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगी। तो रोस्टिंग अगर हमें पता है तो लो रिएक्टिविटी हो गई। नाउ एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। हियर अगर आपके पास कोई भी ओर है, उसके बाहर जो भी मिट्टी है, उसके जो भी वो कंटामिनेटेड है जिस भी चीज़ से, सॉइल, सैंड या कुछ भी, उसको हम बोलते हैं गैंग। सो दिस गैंग हैज़ टू बी रिमूव्ड सो दैट द मेटल कैन बी यूज्ड प्रॉपरली। सो इट कैन बी रिमूव्ड। अगर मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो मेटल हायर रिएक्टिविटी में है, मीडियम में है या लो है। तो अभी हम वी विल स्टार्ट विथ लो रिएक्टिविटी सीरीज। लो में कौन सा था? जनरली विल गेट अ सल्फाइड ओर। इफ़ इट्स अ सल्फाइड ओर तो उसमें कौन सा प्रोसेस करेंगे? वी विल डू रोस्टिंग एज अ प्रोसेस। रोस्टिंग में क्या करते हैं? सल्फाइड ओर को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड। साथ में क्या, कौन सी गैस रिलीज होगी? सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ देखिए HGS, इसका प्यार से नाम है सिनाबर। ठीक है, सिनाबर HDS मर्क्यूरी सल्फाइड। इसको आपने किस में हीट करा? ऑक्सीजन में। फिर क्या मिला? मर्क्यूरी ऑक्साइड। कौन सी गैस रिलीज हुई? सल्फर डाइऑक्साइड। और फिर आप उसको अलग से हीट कर देंगे। हीट करेंगे तो मर्क्यूरी और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा। सेम विल हैपन इन द केस ऑफ कॉपर ऑल्सो। कॉपर अगेन ऑक्सीजन में हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देगा एंड देन कॉपर ऑक्साइड को आप कॉपर सल्फाइड के प्रेजेंस में हीट करिए, कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। देन यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सल्फाइड ore in the case of roasting converts into oxide ore। अब इस केस में आपने क्या किया? इस केस में आपने एक्सेस एयर यूज़ करी है और तो 2 पॉइंट हो गए ये। ठीक है, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड्स, इस केस में आपने लिमिटेड एयर यूज़ करी है एंड देन यू हैव these two reactions. The step 1 for both the reactions is different, however the step 2 is same. Which metal am I using for the reduction? Generally carbon non-metal I am using as for reducing metals. अब अगर कई बार ऐसा होगा कि कार्बन से रिड्यूस ना हो, देन इन दैट केस आई एम गोइंग टू यूज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम बेसिस कि वो मेटल कौन से लेवल का है। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसके लिए उतना रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। ठीक है, हियर जैसे MnO2 से ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम उसको डिस्प्लेस कर देगा और अपना Mn हमें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ थर्मेट रिएक्शन? अ थर्मेट रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन विच इज़ यूज फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स। आयन के रेलवे ट्रैक्स, कहीं मशीन में कोई क्रैक है तो उधर ये यूज़ होता है। इस केस में आप आयन ऑक्साइड ले लेंगे और उसको एल्यूमिनियम के साथ हीट करेंगे। यू विल रिएक्ट देम, यू विल गेट आयन इन द मोल्टन फॉर्म एंड यू विल गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन अ सॉलिड स्टेट। और बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होगी। ये जो प्रोसेस है इट्स लाइक वेल्डिंग ओनली, सो ऑलमोस्ट लाइक वेल्डिंग। सो दिस रिएक्शन इज़ नोन एज थर्मेट रिएक्शन। इस रिएक्शन में बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। हीट इतनी प्रोड्यूस हो रही है कि वो मेटल्स जो हैं वो मोल्टन स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, लर्न दिस ऑल्सो। द नेक्स्ट type is the metals which are high in reactivity series. So first one is, so the metals which are high in reactivity series are sodium, magnesium, calcium, aluminium. इनको कार्बन रिड्यूस नहीं कर सकता, तो इस केस में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इस केस में हम इनके जो भी क्लोराइड्स रहेंगे उनको मतलब मोल्टन स्टेट में रहेगा, तो वी विल ट्राई टू रिड्यूस दैट। मेटल को किधर डिपॉजिट कर दिया जाता है? कैथोड पे। और नॉन मेटल जैसे क्लोरीन है तो वो कहाँ चला जाएगा? इट विल गो टू एनोड।
तो ये इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज अब इन्हीं मेटल्स को जब हमें हाई मीडियम लो मिल जाते हैं वो मेटल्स, तो उनको रिफाइन करना है। दिस मस्ट बी क्लीन, प्योर मेटल्स मिलने चाहिए। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? अंडरस्टैंड द टर्म, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इट इज़ यूज फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स। एंड हाउ आर दे रिफाइंड? आप कोई भी मेटल लाइक कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड कोई भी ले लीजिए। इम्प्योर मेटल की स्ट्रिप लगाइए एनोड पे, उसी का एक सोल्यूशन ले लीजिए नीचे, एंड देन एक पतली सी प्योर स्ट्रिप मेटल लगाइए ऑन कैथोड। व्हेन यू विल पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, द इम्प्योर मेटल्स, जो भी आयन्स होंगे फ्रॉम द इम्प्योर मेटल्स, वो चले जाएंगे इनटू द लिक्विड। देन दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड, एंड दिस वे the impure metal will get pure and the pure metal will start moving towards the cathode, and jitna bhi impurities hai they will get collected at the anode. Okay, so learn this entire paragraph along with the diagram. The one of the last topics here, corrosion. Now from the first chapter it has been deleted, but it is a part of this chapter, so you must read it from the first chapter as well. Now silver, जिसको हम चांदी कहते हैं हिंदी में, you know it's silver in color, it has a metallic shine, but कुछ टाइम के बाद में it becomes black in color. क्यों? क्योंकि silver reacts with silver it reacts with the sulfur जो air में present है, and it will turn into blackish in color. Copper, which is present, copper when you keep it in the air, it gets a greenish colored coat. Why? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और कॉपर कार्बोनेट बना देगा। आयरन रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट एयर, मतलब वाटर और ऑक्सीजन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो बनाएगा रस्ट, जिसको हम बोलते हैं फेरिक। सो दिस इज फेरिक ऑक्साइड। देन इट्स लाइक हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड। अगर हम सिर्फ वाटर में रखेंगे, इफ देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एयर इनसाइड द लिक्विड, then it will not get rusted. अगर सिर्फ एयर है, there is no water in it, then also it will not rust. But if it has both air and water, then it will rust. Okay. How can we prevent corrosion? You can prevent corrosion by painting the substances, oiling them, greasing them, galvanize कर देंगे, मतलब जिंक की एक लेयर लगा देंगे उसके ऊपर, क्रोम प्लेटिंग कर देंगे, क्रोमियम की एक लेयर लगाएंगे, एनोडाइजिंग कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की लेयर लगा सकते हैं, एलॉयज बना सकते हैं, मतलब डिफरेंट मेटल और नॉन मेटल को मिक्स कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर आप एक पतली सी कोटिंग कर रहे हैं, किसकी? जिंक की। तो जब जो आइटम है उस केस में आप जस्ट अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, यू हैव आयरन एंड यू अप्लाई अ लेयर ऑफ जिंक ओवर इट. So zinc obviously is not going to let the oxygen and water react with iron directly, therefore it will not get rusted. Alloy में क्या होगा कि you are using a metal or any non-metal, mixing them together. तो alloy में you are making a homogeneous, मतलब एक consistent, आपको पता नहीं चलेगा वहाँ कहाँ आयन है, कहाँ सिल्वर है, कुछ नहीं पता चलेगा, या कहाँ कार्बन है. इट इज़ मिक्स टुगेदर, और उसके बाद में आपके पास एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, उसको अलॉय कहेंगे. तो इसमें क्या होगा, आपने जैसे प्राइमरी मेटल आयन है उसको मेल्ट कर दिया, उसके अंदर आपने दूसरा मेटल या नॉन मेटल उसके अंदर मिक्स कर दिया, एंड देन यू विल कूल इट एट रूम टेम्परेचर. दिस वे वी कैन प्रोड्यूस अलॉयज. एंड प्योर आयन जो होता है इट्स वेरी सॉफ्ट इन नेचर, बहुत ईजिली स्ट्रेच हो जाएगा. तो सर अगर हम उसमें कार्बन ऐड कर देते हैं इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर उसी आयन में आप निकल और क्रोमियम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है स्टेनलेस स्टील. अगर मरकरी हो किसी भी सब्सटेंस में और साथ में कोई और मेटल, उसको बोलते हैं अमेल्गम. दिस इज़ अनदर अलॉय. इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो प्योर मेटल्स के हिसाब से वो क्या होती है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ कंपेरेटिवली लेस. मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा कम होता है. ब्रास किससे बनेगा, कॉपर और जिंक से. ब्रोंज किससे बनेगा, कॉपर और टिन से. एंड दीज आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो कॉपर लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि वो बहुत सारी वायर्स बनाने में हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में काम आता है. देन वी हैव सोल्डर. सोल्डर इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेड एंड टिन.
इसका भी मेल्टिंग पॉइंट कम है एंड इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर. सो दिस इज इट. दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. Please go through the questions, the in-text questions and the green colored, all these questions in this box, and at least prepare your NCERT. So this is it. We are done with the revision of chapter metals and non-metals. In the next class, I will try to cover up some other chapter. Any doubts, you ask me in the classroom.